Hello, everyone, and welcome to another episode of the Anytime Fitness Stories. So, today we have a very incredible guest with us, Mr. Sumit. Mr. Sumit, Yeah, happy to have you here. I'm glad too that I'm here, and it's a big thanks to Anytime inviting me here. Abhi. And here we share real people and their real stories. Mr. Sumit is not only a powerhouse in the gym, but also someone who acts as a role model and for other members as well. He has built himself in his business, in the fitness, and is someone who is really passionate for what he does. Whatever he starts, he will complete, be it is his own work, his own business, his own ventures, his own fitness routine, and that's all what I have to say. Yeah, see, I have a habit of if I start anything, I make a point to end that as well, and mostly I'm very focused and dedicated. Whatever I do in life, be it a business or fitness or anything. Okay, so Sumit, like, Hmm. who are you outside gym? Because we know Mr. Sumit is someone who comes to the gym regularly, आते हैं, workout करते हैं, तगड़ा पसीना बहाते हैं. So, what is the other side of you that we don't know? See, I'm a very normal person. I'm a self-made man, and I have a small business which I run, and I'm into this business field since you can say 2001, early 2001. And मैंने अपना business खुद से ही build किया along with my younger brother. So, and I know the hardships, because I've never been a privileged, child that, passing over the generation, inheritance and lot of other things with that. So, right from scratch, we try to build it. And so, you can say I have a habit of doing things from scratch, struggles in life, building it, and then then appreciate what I have done. So वो हो सकता है मेरे अंदर में that has come Hmm. in this span of time. So in my younger days, पहले क्या होता था, fitness and going to gyms in mid 90s, late 90s, early 2000s. It was a kind of fashion. Going to a gym is kind of a fashion. Correct. But nowadays, say in last 10 years, Yes. I would say from 2015 onwards, going to a gym and fitness is kind of uh, it is related kind of a medicinal thing that gym is done for your health benefit. पहले ऐसा नहीं होता. It was a fashion kind of a thing. Abhi in last 10 years has been named as going to a gym is for your fitness. It works as a medicine. करेक्ट. सो ये वाला जो चीज़ है फिटनेस रिगार्डिंग जो नॉलेज है लोगों का, हेल्दी रहना है, अच्छा रहना है, ये कोविड के बाद और बढ़ गया है. बिकॉज आफ्टर कोविड पीपल केम टू नो लाइक जिम जाने से सिर्फ बॉडी नहीं बनता, आपका हेल्थ भी अच्छा होता है. यू फॉलो ए गुड रूटीन. I would say, as you said, लोगों को थोड़ा सा वो हो गया है जानना. आई वुड से दिस इज अवेयरनेस. अवेयरनेस. यस. सो अवेयरनेस जो बढ़ा है, वो अवेयरनेस बढ़ा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, एंड एक्सेस टू सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया. Now people are getting access to many stories, करेक्ट. and उस mixed bag में there are many myths also. करेक्ट. So it's a mixed bag जिसमें facts भी है, उसमें myths भी है, उसमें false stories भी है. So people are puzzled. बहुत लोग को anxiety हो जाता है. So I would say due to social media there is one benefit to the gymming community कि लोग थोड़ा सा health fitness के प्रति थोड़ा सा they have become more aware. This is a really good thing. So I started going to the gym, right? Because doctors are coming online, everyone is they are asking to do fitness and all those stuff. So young people, young groups are going to the gym for fitness. पहले यही चीज फैशन होता था. हाँ. सो राइट, आजकल के दिन में लाइक इवन यंग पीपल, सीनियर सिटीजन, वी राइट नाउ वी इवन गेट टू सी सीनियर सिटीजंस कमिंग टू जिम, व्हिच इज रियली लाइक गुड थिंग. It is all, I would say all the credit goes to social media. एंड आप जब अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया, व्हाट मेड यू स्टेप इनटू दिस?
Okay, now this story is something like I would tell you in a very brief uh, mode. Uh, I was into gymming. I used to do in my college days for some time. Then due to many struggles and other things in life, and then marriage and kids, having kids, and building my entire career and all, वो gym मेरा छूट गया था. And since 2013-14 onwards, then as everyone knows that once you don't do any fitness thing, you start having lot of side issues with your body, your mind, and everything. So gradually after 2014-15, I was not feeling very well with my gut, with my mind, and slowly, gradually, by the time I hit 2018-19, and then COVID came. So around COVID 2020 and 21 was the peak time where I was going through lot of depression also, Okay. gut issues also, and I would say because of gut issues, I was also going through a mild, very, very mild kind of, anxiety, lot of anxiety. I would not say depression, but it was a good amount of anxiety. Okay. Okay. So one fine day, my younger brother, he told me that why don't you join a gym? And in response, I told him, boss, gym से क्या होगा? Correct. हाँ, गट मेरा कैसे जिम से फिक्स होगा? हाँ. आई हैव सो मेनी गट इश्यूज. मेरे को ब्लोटिंग होता है, मेरे को गैस होता है, मेरे को एसिडिटी होता है. आई एम नॉट फीलिंग वेल इवन दो आई स्लीप फॉर 8, 9, 10 hours. I don't feel fit. Okay. So he told me, no, you must join a gym, and there is one gym in our city in New Alipur. Anytime में आप जाओ, you join there. So that was one day, and then my wife helped me a lot. She told me ki let's go and explore at least. So I one good day we went and मैंने admission लिया जैसे मैंने बोला, and that was in the year 2022. Okay. So 22 में मैं admission लेने के बाद में the effect started right after 2-3 days. Okay. And I would say the biggest thing आज के डेट में अगर मैं बोलूँ द बिगेस्ट एसेट इन लास्ट 5 years जो मैंने क्रिएट किया है या मैंने पाया है इज दिस थिंग फिटनेस. माय गट इज फिक्स्ड. ओके, माय माइंड इज बैलेंस्ड. वो सारा इश्यूज आर माने नल एंड वॉइड, जीरो हो गया. सो आई वुड से माने इट्स अ गिफ्ट. Okay. बिकॉज फिर आप जिमिंग करते हैं, इट हैज़ many areas it affects from your body, mind, chemical, biological, everything it affects. Okay. एंड जो मैंने ज्वाइन किया उसके बाद में छोड़ने का तो नाम नहीं है. देन कम्स दी अदर पार्ट, डिसिप्लिन एंड ऑल. वो आई था लेफ्ट सीजन. Because when you start loving your journey, discipline, it's a byproduct. Yeah. तो अपने आप आ जाता है. यस, नो, आई वुड से Okay. यहाँ पे मैं डिफर करता हूँ. Okay. कैसे? डिसिप्लिन, फोकस, डेडिकेशन, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको लाइफ में हर बंदा उसको मैनेज नहीं कर सकता. यू हैव टू हैव द विल टू ब्रिंग इन डिसिप्लिन, फोकस एंड डेडिकेशन. Okay. आपके पास में द बेस, द फाउंडेशन इज डिसिप्लिन. Yeah. आपके अंदर में अगर डिसिप्लिन है तो आप फोकस्ड भी होंगे. Correct. आपके अंदर सो इट इज लाइक अ पिरामिड. सो टॉप लेवल इज द डिसिप्लिन. अगर आपका डिसिप्लिन है, आपके पास में फोकस भी आएगा. डिसिप्लिन है तो आपके पास डेडिकेशन भी आएगा. डिसिप्लिन है तो विलिंगनेस भी आएगा. Correct. सो डिसिप्लिन इज अ कॉमन थिंग जो आप जिम में अप्लाई करो, आप अपने काम में अप्लाई करो, वॉट एवर यू डू इन लाइफ, नो मैटर. वो खाली फिटनेस नहीं है. Correct. So that is the main thing you need to have the grip on it. कि discipline मेरे अंदर में होना चाहिए. So how did you build this habit? See, I would say कुछ इनबॉर्न भी होता है. Okay. कुछ लाया जाता है, कुछ इनबॉर्न भी होता है.
सो डिसिप्लिन अगर आपके अंदर में नहीं है हम्म। तो आप डिसिप्लिन ला सकते हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन लाने के लिए थोड़ा मेंटल आपको यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड ओके। कि मेरा मिशन एंड विजन क्या है। यू थिंक अबाउट, क्योंकि लाइफ में इफ यू डोंट हैव अ विजन तो वो मिशन आपके पास में नहीं है। करेक्ट। फर्स्ट यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि मेरे को सी माई गोइंग टू जिम द फिटनेस थिंग, आई हैड अ डिमांड, मेरे पास में एक डिमांड था, करेक्ट। मेरे पास में एक विजन था। और फिर मैंने सेट किया कि मिशन डू वाइल गोइंग टू द जिम आई हैड द मिशन, आई हैड द विजन कि मेरे को उस समय माय मेन थिंग वाज माय गट। ओके। And I forgot to say, I was majorly suffering from hypertension. ओके। ठीक है, so that gut thing that led to hypertension also, and it came to a point. This thing I need to say to everyone who's listening to this podcast that along with my gut, I was suffering from uh, hypertension at a very advanced stage, ओके। and मेरा blood pressure at that time around 2021 it Hmm. was, say, it used to stay around 160 by 105. Oh my God. And doctors also, they also got shocked कि आपका इस एज में, that time I was around 40s, below 40s actually. Okay. Okay. So I was 40. So बोले कि आप क्या करते हैं ऐसा जो आपका ब्लड प्रेशर है। I was doing nothing. I was just working and मेरा न्यूट्रिशनल हैबिट्स भी फोकस्ड नहीं था। So the one great thing I'm relieved in life, I was having 80 mg of blood pressure medicine daily, 80 mg. And you won't believe, while sitting here, I had my blood pressure tablet today in the morning of 1.25 mg. Okay. So you imagine in 5 years, say 4 years, that has been reduced from 80 mg to 1.25 mg. So basically, you fixed your lifestyle. अपने आप खट 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 करके अपने आप ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इट गेट्स कंट्रोल्ड। Yes. अब आप ये बोलोगे कि वो खाली जिम के लिए नहीं है, नहीं, आपकी ठीक है? लाइफस्टाइल, यस, फूड सब मैटर करता है। कभी भी एक चीज नहीं होता। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फोकस, क्लैरिटी, मिशन, विजन, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। इट इज अ फुल मैकेनिज्म। करेक्ट। वो मैं सीखा, दिस इज व्हाट आई एम रियलाइजिंग। सो न्यूट्रिशन, क्लीन फूड, जिम, एंड थोड़ा बहुत एंजाइटी को कंट्रोल करना, बिकॉज आई एम इनटू अ बिजनेस वेयर कंस्ट्रक्शन, लॉट ऑफ फील्ड वर्क, लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ doing this, that, everywhere, controlling everyone. So उसमें you need lot of exhaustion, mental exhaustion, and उसमें anxiety बहुत आता है। End of the day you come, play with your children, be with your family, TV देखो तो chill करो, and अगर meditation 10-15 मिनट कर सको, that is the key. And this is how you manage anxiety. This is, अभी तो जिम से एंजाइटी मैनेज हो ही जाता है। 1 hour I go to the gym, उसमें पूरा सब कुछ भूल जाता हूँ। मैंने I make a point that I forget everything Okay. while I am doing gym. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जो भी करो, अपने कोच से बात करो, जो भी करो, एंड दैट 1 hour इज अ सेल्फ मेडिटेशन ना। मेडिटेशन नहीं, क्या, यू फॉरगेट एवरीथिंग। आपको सारा चीज भूल के यू फोकस इन जस्ट जीरो, ठीक है। यू ट्राई टू गेट ऑल द थिंग्स ऑफ योर माइंड। Okay. सो जिम में वही होता है। सो आई मेक अ पॉइंट दैट जिम में ज़्यादा बातचीत नहीं करना, कॉन्वर्सेट नहीं करना, लोगों से मैं हेड डाउन करके पूछता हूँ, so that I don't get attracted to conversations and gossips and वो। So my coach also, he also says कि सर आप तो मुंह झुका के आते हैं and then you go out मने। So that thing, क्योंकि you can't waste your time, it's very valuable time, 1 hour we get, Correct. Correct. and you have to be very focused। तो वो फोकस रखने में ऑटो मेडिटेशन होता है। जैसा आपने बोला, like it's discipline is inborn and layered after. What will be that piece of advice कि जिसको डिसिप्लिन लाना है खुद को, वो छोटा-छोटा स्टेप्स, बेबी स्टेप्स क्या वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद का लाइफस्टाइल में और खुद का जर्नी में, that discipline can be a part of his lifestyle. What would be that small baby steps? I would first आपका आ गया visualization. देखिए, Second, I got your point. Yes. I got your point. See,
वॉर एक दिन में जीता नहीं जाता, Correct. एवरीवन नोज, Correct. ठीक है. One day you cannot change the world also. Correct. One day you cannot change yourself also. One has to think कि अगर आज, say for example, Yes. if someone has to do MBA, Correct. he needs to study from right from scratch. From nursery, he needs to give his boards, then graduation, then MBA. So, baby steps, as you said, discipline लाने के लिए मैं बोलूँगा कि one should have a clarity कि मैं जिम आज ज्वाइन कर रहा हूँ. There are many people, those who join gym, मैं 4-5 साल के जर्नी में देखा, those who are joining gym, they come to gym, they stay for 6 months, 8 months, 1 year, 1.5, again चले गए. कोई लोग कोई consequences, situational problem के कारण शिफ्ट हो जाता है. But there are many people who just stay back, they उनको बस कोई चीज़ में डाइवर्सिफाई हो गया माइंड, तो जिम आना छोड़ दें. सो एज आई सेड, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में, और मिशन विजन का विलिंगनेस होना चाहिए. वो विलिंगनेस नहीं है, वो फायर नहीं है, तो वो डिसिप्लिन लाना, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट. सो डिसिप्लिन थोड़ा सा इनबॉर्न होता है, ब्लड में होता है, कि कोई भी चीज़ करते हैं शिद्दत से करते हैं, Correct. मन से करते हैं, डिसिप्लिन लाके उसको कंप्लीट करते हैं, नेवर लीव हाफ वे. Yes. सो थोड़ा सा आई वुड से पीपल शुड गेट, यू नो, कोच से थोड़ा सा उनको वो भी चाहिए, अ पुश फ्रॉम देयर कोच, रेगुलर कि कोच कॉल करके बुलाए, थोड़ा मोटिवेट करे, एंड एक फैमिली सपोर्ट अगर मिलता है, सो दैट इनिशियल थ्रस्ट, इनिशियल पुश अगर आपके को पार्टनर से, फ्रॉम फैमिली एंड योर कोच से मिलता है, तो इनिशियल डेज आर अ लिटिल स्ट्रगलिंग डेज. उसके बाद में आप अपने आप डिसिप्लिन लाइन में आ जाते हो. Yes. मेरे को भी आज के भी दिन सुबह उठ के जिम आना किसको अच्छा लगता है. लास्ट डे आप जिम करते पूरा थकते हैं, एंड देन इन द मॉर्निंग अगेन यू स्ट्रगल. आई स्ट्रगल एवरी डे. आई स्ट्रगल विथ माई माइंड. ओके, माई सी देयर आर टू हार्ट्स, वन यहाँ मैं बोलता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. Okay. Okay. सो माइंड मेरा बोलता है कि जिम जाना है, दिल मेरा बोलता है कि सोना है, सोना है. रेस्ट करना है. सो देर इज अ डेली फाइट इन द मॉर्निंग, एंड अल्टीमेटली मेरा माइंड जीतता है, एंड आई मेक अ पॉइंट दैट आई गेट अप एंड गो टू जिम नो मैटर व्हाट. सो आई हैव मेड अ रेजिम ऑफ 4 days in a week, and I चाहे until there is a very big emergency, I go 4 days in a week. सो बहुत सारे मेंबर्स को हम लोग देखा है कि वो बोलते हैं कि क्या होगा कोच लेके, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग ए कोच, हम आएंगे खुद से करेंगे. सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम, क्या कोच लेना ज़रूरी है? See, gymming is like, you're exploring your body. जिम में करेक्ट. now जिम को हम लोग बहुत कैजुअल बोलते हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, whatever, these are all activities inside the gym. It's about exploring your body, and it's very scientific, mind it. एब्सोल्युटली. मैं यही सीखा हूँ, इट इज़ वेरी साइंटिफिक. वो जिम में आके पुलअप्स करना, पुश डाउन करना, ये करना, वो करना, बेंच प्रेस करना, ठीक है, वो अच्छा बात है, बट एवरीथिंग हैज़ अ रीबाउंड्स. राइट. ठीक है, आप जो एक पुश करें उसका भी आपको एक रिवर्स एक्शन मिलेगा. करेक्ट. सो इट इज़ वेरी साइंटिफिक. व्हेन यू एंटर अ जिम, यू आर अ नोविस, यू आर जीरो. आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग जिम फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू ज्वाइनर्स. नाउ yes, there are signs indication, there is an app, okay, उससे आप कर सकते हैं. then there is social media, वहाँ से पढ़ें. ना किसके पास इतना टाइम है? आप कितना काम करेंगे? आप रात को आके फिर आप जर्नल पढ़ेंगे, कौन सा बॉडी के लिए क्या एक्सरसाइज बेटर है, कौन सा पोस्चर, कौन सा एंगल, कौन सा डिग्री. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट आई सजेस्ट for the beginners,
to at least hire a coach for a minimum of a year, if not then at least 6 months, Okay. to get to know the basics of science. Correct. कि मेरे लिए कौन सा चीज इज गुड फॉर मी, विच वन इज बैड, मेरा बॉडी को कौन सा अडेप्टेशंस हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव्स, एंड हाउ टू डू पोस्चर्स, एंगल्स, विच इज गुड फॉर मी एंड विच इज बैड फॉर मी. Correct. मैक्सिमम इंजरीज वही लोग को होता है जो लोग कोच को हायर ही नहीं करते. Correct. And from the very first day, I had this thing in my mind because I am over 40s, I am mid. So, मैं इस एज में I do not want to take any risk. Correct. ये मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है, my personal preference. I do not want to get injured. मेरा posture रहेंगे because at this age, you know, if you get injured, so recovery time is more. Yes. Yes. So, कोच का तो एक पहला बात रोल ये है, educate, giving knowledge. Correct. Now the other part is, coach is also a motivational factor. Okay. Because एक coach आपको motivation देते ही है. देखिए, if you are not coming to the gym, you will get reminders. Coach is reminding you. Coach is calling you. He is texting you. So directly, indirectly, you are getting a little, you know, motivated by the coach is pushing you. So कई बार पुश का भी काफी बेनिफिट होता है. पुशिंग होने से एक ऑब्लिगेशन आ जाता है. करेक्ट. अरे यार कोच फोन कर रहा है, कोच बुला रहा है, लेट्स गो. तो कोच 2-3 बार बुलाया, आप 2-3 बार गए, फिर आप ट्रैक में आ जाएंगे वापस. करेक्ट. जहां पे आप ऑफ ट्रैक जाते हैं, देन कोच इज देयर टू, यू नो, रेस्क्यू यू. Yes. एंड थर्डली आई वुड से साइंटिफिक नॉलेज बहुत जरूरी है. कोच इज मीटिंग यू फॉर 1 hour. Yes. ठीक है. रेस्ट आपके पास में, you have, everyone has lot of time. Correct. One should read. Like I read a lot. मैं I'm not a doctor, but I am very much inclined towards science. Okay. मैं journals पढ़ता हूँ, मैं साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, मेडिसिन के बारे में आई एम वेरी अट्रैक्टेड. ये मेरा एक नेचुरल वो चीज़ है कि आई एम वेरी अट्रैक्टेड. दो आई एम वेरी अनलकी, आई हैव नेवर गॉट अ चांस टू बिकम अ डॉक्टर और गो इनटू साइंस सब्जेक्ट, साइंस. बट सो गेटिंग नॉलेज, आप जो लिफ्ट कर रहे हैं, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कोच आपको बता रहा है, वो कोच से भी बात करें कि क्या चीज़ के लिए इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा. जस्ट ब्लाइंडली कुछ नहीं करना है. Yes. Yes. ठीक है. Yes. कोच ने आपको बता दिया, आप कोच पे पूरा भरोसा रखें, पूरा विश्वास रखें एंड ब्लाइंड उस पे फेथ रखें. बट आप भी घर आके उसको देखो कि आज मैंने ये किया है, वो उससे बेनिफिट किया है, उसका नेगेटिव्स किया है, उसका मेरे को कितने दिन में रिजल्ट्स आएगा, उससे क्या होता है, क्या डेवलप होता है. सो दीज आर फ्यू की फैक्टर्स यू शुड, यू नो, Because what keep in mind and believe your coach blindly. because what to do, how much to do, when to. These are the important things. कोच तो आपको लिमिटेड टाइम है ना, 1 घंटा में जितना वो आपको नॉलेज दे पाएगा, उसके बाद तो आपको खुद से गेन करना नॉलेज. Correct. 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 तो सभी चीज में ups and downs है. So what is the one down in your, like, in your career that has shaped you in who you are today? You know, down, there is no one thing in my life. There is not one single thing in my life. You know, my life has gone through initial years, gone through, you know, shaping my career, building my career, struggles. ठीक है. छोटे से एक बड़ा होना. As on today's date, we are employing more than 200 people. Okay. So, and there was once a time when I used to ride a bike and distribute pamphlets all over the city. I was the owner, I was the marketing person, I was the accountant, I was everyone. So from that journey, today I am employing 200 people and their families and running a successful business. So स्ट्रगल ना आपको स्ट्रांग बनाता है. Correct. स्ट्रगल आपको रियल वैल्यू ऑफ लाइफ समझाता है. स्ट्रगल से आप ओवरकम करके जब आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू आर मैच्योर्ड एंड व्हेन यू आर इन योर 40s और 50s,
then you come to know the real value of your health. The moment you hit 40s, there is a vast change in your health, I would say. So there is not one single thing, which transformed and helped me shape. There are many things, and I would say it's struggle that made me disciplined and, for everything, for my work and my fitness journey. Okay. So, like, Mr. Sumit, do you travel? Do you keep traveling? Travel मेरा बहुत कम होता है. It's the opposite. I don't travel much because Okay. my work is something ऐसा है कि I stay in Calcutta mostly. Okay, but अगर हम travel करना होता है, उन दिनों में आपका like, do you work out on even on those days? See, to be very honest, travel I mean we go out for vacations and marriages और इसमें होता है. Then तो I don't care. I eat a lot. Okay. I travel, eat a lot, and travel में कोई फिर gym मेरे से नहीं होता. Then I sleep, I travel, I work. And when you're doing regular fitness regime, your metabolic rate is so high. There is a point where you reach. There is a point where you reach at a certain point जिसके बाद में even if you are having lot of food in volume quantity, sleeping less, having lot of food, odd timings, आपका बॉडी कोप कर लेता है. Correct. वो फैट कलेक्ट नहीं करता है. वो आपको कुछ नहीं. देर इज अ बबल विच यू क्रिएट फॉर 4-5 years when you हाँ वर्कआउट आप कर रहे हैं ना, एक बबल क्रिएट होता है. वो 10 दिन का वेकेशन जा रहे हैं, 10 दिन में आप पानी पूरी खा रहे हैं या आप चाउमीन खा रहे हैं या वो खा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है. यू आर सेफ. आप सेफ गार्ड हैं फ्रॉम मेनी बैड थिंग्स हैपनिंग टू यू. Yes. सो उसमें उस समय मैं नहीं करता हूँ. आई एम वेरी टेंशन फ्री रहता हूँ उसमें. आई डोंट वर्क. So अभी आपका like daily like food habits क्या है? आप रोज उठते सो उठते क्या खाते आई एम वेरी माइंडफुल. हाँ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक डिसिप्लिन का एक पार्ट है. करेक्ट. सो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल. एंड ये करते करते ये आपका एक नॉर्मल रूटीन हो जाता है. फर्स्ट आपको इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज में थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ता है कि मेरे को ये खाना दिस इज. बट मैं ये सोचता हूँ दिस इज आई एम हैविंग फूड टू लिव लॉन्ग. आई एम वेरी मैकेनिकल एट माई माइंड. मेरे को आप 5 दिन करेला खिलाओगे ना, मैं 5 दिन करेला खा लूँगा. मेरे को उसमें स्वाद नहीं ढूंढना है. आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई हैव करेला. ओके. बिकॉज मेरा वो टेम्पटेशन जाता ही नहीं है. वो फेज मेरा खत्म हो गया. आई हैव लेफ्ट इट लॉन्ग बैक. अब नहीं जाता है. आई हैव फूड टू लिव लॉन्ग. ओके. I have food to secure my future. I am doing my gym not only to look good, lean and fit. My main mission is to live long. To be very honest, Yes. in the podcast. So my vision is to live long and healthy. Correct. ठीक है. मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि I want to look good, I want to look fine, fit, and लोगों का वो लेना, कॉम्प्लीमेंट्स लेना. आई एम हियर डूइंग माई फिटनेस विथ अ विजन एंड अ मिशन टू लिव लॉन्ग एंड ऑफ कोर्स फॉर माई फैमिली. So आपके लिए फिटनेस का मतलब ये है that you want to live little bit longer. Yes, because आप the moment you are doing training, ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मे बी नहीं भी करे. आफ्टर ऑल इट्स ऑल रिटन इन योर फॉर्च्यून कि क्या करेंगे, कितना जिएंगे. बट स्टिल एटलीस्ट यू कैन गिव अ ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ. Correct. सो माइंडफुल खाना खाना एंड व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, आई नो. मैं एक मेरा चीट डे होता है वेर आई हैव ऑल द स्टफ. जो नहीं खाना है वो भी मैं खाता हूँ. बच्चों का भी मन रखना है. ऐसा बात नहीं है कि आप हमेशा ऐसा खाना खाओ कि आपकी फैमिली आपसे एंटी हो जाए. सो नीड टू टेक केयर. यू हैव टू वही बैलेंस लाइफ में रखना है. सो एक प्लेट में पोर्शन होता है प्रोटीन का, कार्ब्स का, फाइबर का, ये इसका उसका, माइक्रो मैक्रो सब. सो यू नीड टू हैव बैलेंस इन योर लाइफ. सो वन डे आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, ईट विद देम. पानी पूरी खाना है, पिज्जा खाना है, पुचका खाना है, और भी स्टफ जो भी खाना है, जंक. बच्चों का भी मन खुश रखना है. ओके. सो वन डे आई डू दैट. आपका फेवरेट चीट मील क्या है?
मेरा फेवरेट चीट मील है एकदम इंडियन ढाबा स्टाइल देसी खाना। आई डोंट मेरा इतना प्रेफ़रेंस नहीं है इटालियन एंड मेक्सिकन जो कि आजकल का फ़ैशन है। हाँ। ठीक है? तो ये फूड, फ्यूज़न फूड एंड सो डेकोरेटिव फूड हुँ। आई डोंट लाइक। जो अपने देसी खाना खाते हैं, हुँ। जो मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, देसी स्टाइल का एकदम जो होता है, बस दैट इज़ द बेस्ट। And like every day once a week you हाँ। reward on this. हाँ, हाँ, आई मीन आई डोंट हैव एनी फैंसी कि मेरे को एवोकाडो खाना है और ब्रोकोली खाना है, वही होना चाहिए, नो। व्हाटएवर सीज़नल थिंग व्हिच वी आर गेटिंग ईज़िली, आई हैव दैट। Okay, it's really good. हाँ, हाँ। Yeah, and do you believe like cheat meal ratna is a good thing, is a rewarding things? आज के दिन में ना, हुँ। आज के क्या है, हमेशा देयर इज़ अ ह्यूमन नेचर, इफ यू डोंट इंसेंटिवाइज़ हुँ, हुँ, हुँ। योरसेल्फ और योर एम्प्लॉयी Employee. और योर कलीग, Yes. इंसेंटिव्स वर्क्स एज़ बंडल्स, ठीक है? Correct. Correct. सो हमेशा एक इंसेंटिव होना मतलब एक टारगेट। हुँ, हुँ, हुँ। मैं किसी के लिए अल्कोहल भी इंसेंटिव होता है Okay. कि मैं इतना दिन वो करूँगा, तो उस दिन जाके मैं एक ड्रिंक पीऊँगा। हाँ। मैं इतना दिन जिम करूँगा तो संडे को मैं पिज़्ज़ा खा लूँ। पिज़्ज़ा खा लूँगा। सो वो ड्राइव रहता है। अगर आपके लाइफ में अगर इंसेंटिवाइज़ आप योरसेल्फ को, अपने आप को इंसेंटिवाइज़ नहीं करेंगे, हुँ। सो लाइफ एकदम फीका हो जाएगा। आई वुड से वन डे चीट मील कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है उससे। Correct. आप 4-5 हज़ार कैलोरीज़ खा लो ना संडे को, हुँ, हुँ, आप हुँ। इफ यू आर रेगुलर, हुँ। आपका 1% भी फैट बर्न नहीं होगा। आई एम सेइंग, मैंने बहुत बार किया है, Okay. कुछ नहीं होता है। मैं मैं पराठे भी खाता हूँ, हफ्ते में 2-3 बार, 4 बार, देसी घी के पराठे खाता हूँ। अच्छा। आप मेरे को देख के बताइए कहाँ मेरा फैट है या कहाँ मेरा वैसा ओवरवेट हो गया। Correct. Correct. सो आई एम हैविंग एज़ लॉन्ग एज़ यू आर स्ट्रिक्ट इन योर रेजिम, हुँ, हुँ, हुँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है पीक, उसके बाद में आप कोई भी हेल्दी डाइट आप खाइए, आप पराठे खाइए, लेकिन आप जिम तो जाइए, आप फिटनेस तो करिए, वॉक करिए, रन करिए, जॉग करिए, ट्रेनिंग करिए। एंड अगर कोई अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट दैट फिटनेस जर्नी, व्हाट वुड बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस यू लाइक टू गिव देम? कंसिस्टेंसी इज द की फैक्टर। ओके। वन शुड बी कंसिस्टेंट हुँ, हुँ। एंड कंसिस्टेंट होने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वेदर इट इज जिम और वर्क और एनीथिंग। आप कंसिस्टेंट कोई भी चीज में बोलो, आप कोई गलत काम भी कोई आदमी करना चाहता है, वो उसमें कंसिस्टेंट अगर रहेगा ना तो वो गलत चीज हो जाएगा। ओके। हाँ, सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज आई सेड, सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, इट इज़ मिक्स ऑफ ऑल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट। एंड आई वुड एडवाइज एनी न्यू बिगिनर हुँ, हुँ। सो टू दैट फर्स्ट, सबसे वंडरफुल थिंग है दैट ही और शी joins a gym, हुँ। and initially he or she should hire a coach. ओके। That is very important. कोच हायर करो, हुँ। कंसिस्टेंट रहो, 3-4 बार जाओ, and also be a little mindful with your food. Now, having food, junk food, गलत खाना 5-5 दिन, 4-4 दिन आप स्विगी कर रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो जिम जा रहे हैं, देन वो दैट अफेक्ट्स योर गट, माइंड सब, फिर वो जिम हो नहीं पाता है। सो आई वुड एडवाइस कि अगर यू वांट टू लिव लॉन्ग, हुँ। लाइक अभी आप देख रहे हैं कैसे केसेस होते हैं, पीपल आर फेटल, heart attacks are happening and everything. It's all stress. करेक्ट। Coming to the gym, so one needs to have a clarity in mind, and he or she who wants to live long, I'm again saying, this expands your life. Going to gym, training, mindful eating, this will give you benefits. वो आपका कुछ तो लाइफ में ऐड करेगा। Correct, correct. Absolutely, absolutely. This is what most people needs to understand. हाँ, So gym is not only the place for bodybuilding. no, You go there to build your like you go there to build. वो फैशन एंड शो ऑफ वाला था, चला गया, वो एरा चला गया। Now it's all about how to like have a good heart health,
Right. how to have better endurance, how to have better stamina. And you know, building muscle extends your life. Yeah. ये scientifically proven है. There are journals, there are scientific evidences. So one should take gym very seriously. उसको एक अड्डा पॉइंट नहीं बनाने का है कि वहाँ पे जाना है, दोस्तों से मिलना है. वो उसके लिए बाहर में जगह है, तो जिम के नीचे में जगह है. यू हैव योर टाइम, यू हैव गॉसिप्स विथ योर फ्रेंड्स, आप मिलिए उनसे. बट जिम में जाना है तो पूरा डेडिकेशन के संग जाना है. बी साइलेंट, फोकस, बात कम करना है, एंड वो 1 घंटा अपने आप को देना. देयर आर मेनी पीपल हु से कि यार जिम जाने का टाइम नहीं है. Correct. ठीक है, ये एक फंडा एवरीवन हैज, दैट जिम जाने का टाइम. सो आई विल कम टू दिस पॉइंट कि But they'll have time to keep scrolling on reels. Movie देखने का time लग जाएगा. you say you have 24 hours of time Correct. in a day. Correct. 9 hours, say 8 hours goes for Your words. sleep. Okay. So you sleep. 9 hours goes for, say, work. Yes. इन टोटल 17 आवर्स आपका चला गया. मैंने 9 घंटा 8 घंटा निकाल दिया, 17 घंटा आपका गायब है. यू इवन हैव देन ऑल्सो यू हैव 7 आवर्स. 7 hours. आप 7 आवर्स में और 2 घंटा आप मिसलेनियस काम के लिए निकाल दो. देन ऑल्सो यू हैव 5 आवर्स. 5 आवर्स में आप और भी 4 घंटे आप निकाल दो कोई और भी बेफालतू के कामों के लिए. देन ऑल्सो यू हैव 1 आवर. 1 hour. सो ये वाला जो है ना कि यार आई डोंट गेट टाइम, दिस इज द वर्स्ट थिंग. एंड ये मैं मानता ही नहीं कि टाइम India Fitness 24 घंटा खुला है. 24 के लिए टाइम नहीं है. 11 बजे और 12 बजे और Join us. यस डेफिनेटली. Yes. एक last question. Since you are self-made man, someone who is struggling in his career, someone who wants to be something at some point of time, what would be your advice to them so that we can learn from you? सी, फेलियर में आते हैं फर्स्ट. फेलियर इज अ पार्ट, अ लैडर टू सक्सेस. ठीक है, अगर फेलियर्स हो रहा है लाइफ में ना, सो दैट इज अ साइन दैट यू विल सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको सक्सेस गारंटीड है. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. एंड फेलियर्स आएगा ही आएगा. But give up depend है. वही बात है, आपको धैर्य, हम लोग बोलते हैं, आपको धैर्य रखना है, Patience. पेशेंस एंड फोकस. बिकॉज लाइफ आपसे बहुत स्ट्रगल करवाएगी एंड आपको चैलेंजेस के बाद चैलेंजेस आपको फेंके. द लाइफ विल टेस्ट योर पेशेंस कि आप कब ऑफ ट्रैक होके छोड़ दे. वन शुड बिलीव कि ये मेरा स्ट्रगल है, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आई हैव टू बी पेशेंट. आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा. सो फेलियर्स नो मैटर जो भी हो, फोकस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये 3-4 चीज को अपने अंदर एकदम इसको दवाई की तरह पी ले कि मेरे को ये रखना है. मैं गारंटीड बोलता हूँ हर आदमी को सक्सेस मिलता है, हर आदमी को. प्रॉब्लम ये है कि लोग 99.9% में आके ड्रॉप कर लेते हो. दे डोंट नो कि मेरा नेक्स्ट मोमेंट ही मेरा सक्सेस है. 0.1 में मेरा एक स्टेप था, हम वहीं से निराश होकर छोड़ दिया एंड टर्निंग बैक. सो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आता है 100% सबको मिलता है. लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट के बाद जस्ट बैक आउट. दे डोंट नो कि कल परसों मेरा वो सक्सेस होने वाला था. कंसिस्टेंसी, फोकस, डेडिकेशन, मिशन, विजन बहुत ज़रूरी है. देयर आर मेनी पीपल वर्किंग इन देयर डेली लाइफ, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ में वो फोकस, मिशन, विजन नहीं है. दे डोंट नो कि हमको कहाँ जाना है. दे डोंट नो कि हमको लाइफ में क्या करना है, हमको रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, हमको सेटल कहाँ होना है, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, पुणे. हमको अपने कैसे रेस्ट, माई 20 ईयर्स को कैसे स्पेंड करना है, वेयर आई विल एंड, वेयर आई विल बिगिन, वेयर आई विल स्टे. वो मिशन विजन नहीं होता है. मैं कंपनी तो चला रहा हूँ, लेकिन कंपनी को मेरे को लेके कहाँ जाके एंड करना है, उसको क्या बनाना है, वो मिशन विजन क्लैरिटी ही नहीं रहता है. मोस्टली लोगों को माइंड में क्लैरिटी नहीं रहता कि मेरे को मेरे लाइफ के संग में करना क्या आगे. वो फोरसाइट ही नहीं रहता कि 25-30 साल का वो, दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी. पीपल आर वर्किंग, एम्प्लॉयज काम कर रहे कंपनी में, वो काम कर रहे, जस्ट दे आर गेटिंग पेड, दे आर वर्किंग.
but they don't realize कि मेरे को ultimately कहाँ पहुँचना है iPhone से. So one should have a clarity. Absolutely. That's such an inspiring discussion with Mr. Sumit. And people who are watching our podcast, you take some piece of advice, motivation. I will really wish that this really helps you in a day-to-day life, and you start up your new fitness journey. Don't be disappointed if you're failing up in a day-to-day life, work or career, because as we can see with Mr. Sumit, as he said, like, be focused, be disciplined, and always visualize your goals, because visualization is the key. जो आज बात करके मुझे समझ में आया, if you have that clarity and if you have that vision, मुझे करना क्या है, nothing is impossible. You can even have a good health, you can even have a good, well-built career, Absolutely. and it's really interesting. And let's see more and more young people, they come Yes. and do something for their body, mind, fitness. And thanks to Mr. Sumit for flexing his discipline, and it has really been an inspiration to all our members, to me as well. And we really hope to see you again, and we'll have this more engaging discussion, and we learn much more from you. Thank you so much for calling me. Yes, thank you. To all our listeners, thank you for tuning into BI Talks featuring the Anytime Fitness Stories. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe for more such amazing stories, real stories from real people. Until next time, this is Sudeep signing off, reminding you that no matter where you are, wherever you are, how busy life gets, Anytime Fitness is always there for you 24/7. Let's make healthy happen.